चलिए शुरू करते हैं। आवाज आ रही है? आर यू लिसनिंग? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Okay. So where we are? We are in metal cutting, and we have covered the orthogonal and oblique cutting. So basically in your syllabus, you have to study, you have to focus on the orthogonal cutting, means the cutting direction and the feed direction is perpendicular to each other. Means तुम्हारा कटिंग फोर्स फीड फोर्स के परपेंडिकुलर होगा. In oblique cutting, generally in your syllabus is not be provided to study the oblique cutting, but we will discuss some points where the oblique cutting is necessary. So the notes I have provided in the last class. So orthogonal cutting, sir, the difference between orthogonal cutting and the oblique cutting, you have seen that means in orthogonal cutting, the chips and the cutting edge are perpendicular to each other, and chip flow through the rake face. So the power consumption and heat generation is more in case of oblique orthogonal cutting. But as compared to orthogonal, oblique cutting is better surface finishing and some better the heat loss or heat generation is less in case of oblique cutting. So in general practical life, the oblique cutting is when they happen, but the ideal conditions where some formulas and the mechanism is based on the orthogonal cutting. So in this syllabus provided by the university, we will generally focus on the orthogonal cutting. So general, in case the forces act on the orthogonal cutting and oblique cutting, we will see now. So the difference between the orthogonal cutting and oblique cutting have finished till. So the forces generally in orthogonal cutting are the two types. In when we focus on the cutting phase or tool movement, there are two forces acting in case of orthogonal cutting. So generally the axial cutting force and tangential cutting force. वॉइस कट कट के आ रहा है. Somebody has still not joined. Let's wait. Some people's having the problem to join. So now it is okay. Am I audible now? The voice is clear? Yes, sir. So in case of orthogonal cutting, actually the forces in general, the cutting force जो cutting के लिए this is the workpiece or the tool is movement. The tool is movement is like that. तो feed direction किसको बोलते हैं? Feeding velocity किसको बोलते हैं? जो टूल को हम मूव कराते हैं, along the workpiece, that the velocity of the tool movement along the workpiece is called the feed. Feed किसको कहते हैं? टूल जो मूव करता है उसको फीड बोलते हैं. और डेप्थ ऑफ कट किसको बोलते हैं बाबू, बता दो थोड़ा. जितना वर्कपीस में मतलब डेप्थ करके काटेंगे उसी को बोलेंगे. पेनिट्रेशन हम वर्कपीस में देंगे, दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ कट. डेप्थ जितना हम काटना है उसको हम देते हैं डेप्थ ऑफ कट. सो फोर्स के मामले में अगर टूल और वर्कपीस को हम देखेंगे तो फोर्स बहुत सारा तरह के लगेंगे, जैसे कि
फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स करने का मतलब है जब टूल वर्कपीस को मेट करेगा तो दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप होगा। देन जब चिप फ्लो करेगा, जब मतलब कि कटिंग शुरू होगा और चिप जो है फ्लो करेगा, चिप जब फ्लो करेगा तो इन दैट केस अ शियर डिफॉर्मेशन, चूंकि हम जानते हैं कि मशीनिंग में जितना भी कटिंग होगा वो द फेल्यूर ऑफ शियर फेल्यूर के कारण होता है। मतलब टेंजेंशियल फोर्स विल बी एक्ट बिटवीन द टूल एंड चिप, टूल एंड वर्कपीस। सो एक शियर डिफॉर्मेशन प्लेन बनेगा। So that plane is called shear deformation plane, and the force along the shear deformation is called the shear plane is called the shear force. उसके बाद एक नॉर्मल, चूंकि कांटेक्ट में जब दो सरफेस रहता है तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स वी नो अ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस, अ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस विल एक्ट। बट ये सारा जो फोर्सेस है, दिस ऑल फोर्सेस विल बी कम अंडर द मर्चेंट सर्कल। सो जब मर्चेंट सर्कल हम पढ़ेंगे तो उस समय हम शियर फोर्स, कटिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल टू द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एंगल, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम केवल ये जानते हैं कि जब इन जनरल जब कटिंग होता है, इन जनरल जब कटिंग हो रहा है तो देयर आर द टू फोर्सेस विल बी एक्ट। फर्स्ट फोर्सेस, चूंकि फीड हम दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, टूल और ये कांटेक्ट में फीड हम दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो उसका अपोजिट एक फीड फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट फोर्स भी इसको बोलते हैं, एंड उसको बोलते हैं एक्सियल कटिंग फोर्स। एंड एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देखो यहाँ पे देखेंगे कि दिस वन इज द वर्कपीस इज रोटेटिंग and the tool is contact orthogonally, here the clearance angle will be provided। जब टूल सिग्नेचर पढ़ेंगे तो बताएंगे कि this clearance will be provided because the rubbing action between the cut surface of the portion which are already cut through the cutting, and ये portion touch ना हो, अगर touch हो जाएगा ना तो extra rubbing will be created and the heat will be generated। So we will give a clearance, that clearance is also called the angle of relief provided to the tool। So tool को 6 एंगल प्रोवाइड करते हैं, 6 एंगल्स विल बी प्रोवाइडेड टू द टूल। व्हेन वी स्टडी द टूल ज्योमेट्री, टूल सिग्नेचर, देन आई विल बी show the clear picture of the tool, why the different angles will be provided to the tool। Firstly, you have seen the forces generated. One, the tool is movement there from a feed is in this direction, feed is this direction, so opposite directional thrust is be thrust force or axial force will be acted in the case of orthogonal cutting। Now ये सरफेस जो है, ये 3 डायमेंशनल में सरफेस जो है यहाँ पे रहेगा टूल के फेस, टूल के एज में, तो एक डाउनवर्ड एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग, and this force is mainly cause the cutting of the workpiece। So in orthogonal cutting, generally tangential force and axial force will be act, and axial force due to the feed जो कर रहे हैं तो कांटेक्ट हो रहा है तो फीड के एक नॉर्मल लगेगा, और टेंजेंशियल फोर्स द फेस के कटिंग फेस के टेंजेंशियली लगेगा। तो ये दोनों फोर्स जनरली जो है इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग में लगता है। We will discuss more forces, that is shear plane forces, frictional forces, after the completion of this the two forces are generally cause the cutting of the workpiece। So the tangential force का definition हम यहाँ पे आप लोग को लिख दिए हैं। The tangential force is generally 99% cause to cut the materials। So it is a vertical plane में लगेगा, और it is the largest force that cause the cutting of the workpiece। Now the axial force feed के डायरेक्शन के feed इस तरह हो रहा है, feed इस तरह हो रहा है, so axial force को thrust force भी बोलते हैं in case of oblique cutting, but in case of orthogonal cutting, but in case of oblique cutting we will see later।
So axial force, it acts the horizontal plane, it parallel to the axis of the workpiece, and its value is लगभग कटिंग फोर्स का 30 to 60% जो पावर कंजम्पशन होगा वो फीड फोर्स में के लिए होगा. So the axial force is here, and the tangential to the workpiece force Ft is here. So the resultant will be the main cause to cut the material. So resultant force will be determined by R is equal to root under. This is the both are orthogonal. With both forces are in perpendicular direction. So for the Pythagoras formula, the resultant force will be root under Fa square by Ft square. So थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऑब्लिक कटिंग के केस में. ऑब्लिक कटिंग में एक्चुअली में होता क्या है, सम इंक्लिनेशन विल बी प्रोवाइडेड, एन इंक्लिनेशन एंगल विल बी प्रोवाइडेड टू द टूल सो दैट द कटिंग एज विल नॉट बी परपेंडिकुलर टू द फीड डायरेक्शन. ये होता है ऑब्लिक कटिंग में. सो देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग along the tangential along the cutting during the cutting. The first one is the एक फोर्स लगेगा कटिंग एज के टेंजेंशियल, दूसरा फोर्स लगेगा एक्सियली, एंड थर्ड फोर्स लगेगा द अलोंग द टूल डायरेक्शन. चूंकि अब एंगल है, एक एंगल है, तो इस कटिंग पॉइंट के कटिंग टूल के डायरेक्शन में एक एंगल, एक फोर्स लगेगा टूल के फीड डायरेक्शन में. दैट फोर्स इज कॉल्ड रेडियल फोर्स. जैसे क्या है कि ये टूल है, टूल ऐसे मूव करेगा वर्कपीस के, और ये एंगल से रहेगा, ये एक एंगल से रहेगा, तो एक टूल के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा रेडियली, बिकॉज इट इज प्रीवियसली इट वाज in orthogonal case it will be perpendicular, so the force is not will happen, but when the one angle will be provided, inclination angle will be provided, then one force will be acted along the tool direction, that is called the friction, that is called the radial forces. So actually in this one is the case in three-dimensional body, where the this plane में this plane को चेक करेंगे. Look at here, this plane को चेक करेंगे, तो अभी देखेंगे जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो रेडियल फोर्स, और ये जो एक्सियल फोर्स है उसके एक रिजल्टेंट को थ्रस्ट फोर्स कहते हैं इन केस ऑफ ऑब्लिक कटिंग. सो ये थ्रस्ट फोर्स Ft जो इस रेडियल फोर्स और इस एक्सियल फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स है, ये फोर्स जो है ऑर्थोगोनल कटिंग में ये फोर्स होता है. कैसे कि अगर हम एक इंक्लिनेशन एंगल यहां से आई है, तो दैट inclination angle will also this one, and this will be perpendicular to this. So we will see that in two-dimensional figure, here is the radial force in the tool direction, axial force in the in the axis of the workpiece, and thrust force is here. So Ft, अब Ft का I के inclination angle ये है, यहाँ पे है, तो that inclination angle will be this one. So I का हम कंपोनेंट इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे Fa और Fr डायरेक्शन में, तो वी विल सी दैट द Ft cos थीटा और Ft sin थीटा, और जब इंक्लिनेशन एंगल ऑर्थोगोनल में 0 होता है तो 0 पुट कर देंगे, sin थीटा का टर्म 0 हो जाएगा, और ये टर्म्स आपका एक्सियल थ्रस्ट में हो जाएगा. सो रेडियल फोर्स क्या है, थ्रस्ट फोर्स क्या है, वी हैव डिफाइंड एंड आई हैव क्लियर्ड देयर. सो किसी फोर्स का हम जब कंपोनेंट इधर और इधर लेते हैं, ऑर्थोगोनल केस में आई जो एंगल है वो 0 होता है, तो ऑर्थोगोनल केस में जब आई का वैल्यू 0 ले लेंगे तो रेडियल फोर्स 0 हो जाएगा. सो रेडियल फोर्स हम बताए ऑर्थोगोनल कटिंग में नहीं होता है, केवल और केवल ऑब्लिक कटिंग में होता है रेडियल फोर्स. रेडियल फोर्स मींस द फोर्स इज along the axis of tool. इस टूल के एक्सिस में एक फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू द इंक्लिनेशन प्रोवाइडेड to the tool. Now
some other technology terminology will be also be associated with the orthogonal cutting, that is the chip thickness ratio, shear plane angles, and another some velocity, direction of velocity, cutting velocity, shear velocity, and chip flow velocities. So these are the mechanism, or these are the main terminology in the case of orthogonal cutting. So we have take some up during the cutting, we have take some assumptions. So in general, the orthogonal cutting is the your syllabus, so focus on the orthogonal cutting. So analysis of orthogonal cutting: in orthogonal operation means where the edges or the tools are perpendicular to the fit direction. So the cutting tool is completely defined by the back rake angle. So generally back rake angle और side rake angle generally हम टूल ज्योमेट्री अभी मानते हैं कि हम पढ़ा दिए हैं, क्योंकि टूल वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जितना भी एंगल रेक फेस ये सब हम जानते हैं। तो वो बैक रेक एंगल हम इसमें यूज होता है जनरली। तो बैक रेक एंगल होता क्या है? सपोज दैट दिस वन इज द फेस ऑफ टूल, एंड फेस ऑफ टूल को हम दो एंगल प्रोवाइड करते हैं। एक चिप फ्लो कराने के लिए ना इसको बनाते हैं सर। चिप फ्लो कराने के लिए, क्योंकि चिप जो भी है सटे नहीं, और वर्कपीस जो है केवल एज से कटिंग रहे, एज को ही टच करे और उसका सरफेस को टच नहीं करे। समझ में आ रहा है क्यों? अगर सरफेस टच करेगा डायरेक्टली टू द वर्कपीस से, अगर सरफेस टच करेगा तो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन होगा, एक्स्ट्रा हीट होगा, एक्स्ट्रा पावर जनरेशन हो जाएगा, पावर जनरेशन एक्स्ट्रा लगेगा। तो इसीलिए हम टूल को दो एंगल प्रोवाइड करते हैं। एक जो है हम ये साइड वाइज फेस बोलते हैं उसको। तो साइड वाइज में हम एक फेस को एक ऐसे एंगल प्रोवाइड करेंगे और एक ऐसे एंगल प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होता है, अब कटिंग एज जब लगेगा टूल वर्कपीस पे, कटिंग एज जब वर्कपीस पे लगेगा तो ये जो फेस है, जो ऊपर वाला रेक फेस है, जनरली चिप जो फ्लो करता है उस फेस पे, अब जो है डायरेक्टली इट विल बी नॉट कॉन्टेक्ट इन द चिप, सो दैट the extra losses due to the heat and friction will be avoided. So back rake angle generally होता क्या है कि जो एंगल प्रोवाइड किए हैं और जो टूल का ओरिजिनल जो ओरिजिनल एक्सिस था उस एक्सिस के साइड में से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे तो जितना एंगल झुकाव है फेस पे वो हो जाता है साइड रेक। और इस डायरेक्शन में, बैक के डायरेक्शन में, ये दिस वन इज साइड वाइज एंड दिस वन इज द बैक वाइज, देयर द कटिंग एज विल बी टच टू द वर्कपीस। अगर वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन टूल के डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर खींच देंगे तो जितना एंगल यहाँ पे झुका हुआ रहेगा वो ये एंगल जो है वो होगा बैक रेक एंगल। तो बैक रेक एंगल ही जनरली एसोसिएटेड होता है ऑर्थोगोनल कटिंग। सो जनरली द assumptions are taken, the tool is perfectly sharp throughout the cutting, टूल परफेक्टली शार्प होना चाहिए कटिंग से पहले, क्योंकि इससे पहले हम थोड़ा ग्राइंडिंग कर लेते हैं। जब भी टूल का ऑपरेशन करते हैं वर्कपीस जब मटेरियल रिमूव करना होता है तो टूल फर्स्टली वी हैव टू बी ग्राइंड, then deformation take place along a very thin zone which can be approximated the shear plane zone. shear zone अभी हम दिखाने वाले हैं। अभी जब टूल जब कट करेगा वर्कपीस को तो कौन कौन सा एंगल जनरली हमको लेना है, वो अभी हम कौन कौन सा प्लेन होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर there is no sidewise flow of the chip occurred so that the width is constant. जब भी मटेरियल जो वर्कपीस है वो कटेगा तो विड्थ वाइज कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा, जो चिप निकलेगा उसका थिकनेस में और उसका लेंथ ऑफ कट में, जितना लेंथ काटेगा उसमें जो भी विड्थ होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसा हम रोलिंग में पढ़ाए थे वैसा ही चिप का विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा। इट मींस हमें कहना है ये कि जितना मटेरियल का पहले वॉल्यूम होगा, जितना काटना है, जैसे हमको सोच लो कि ये पोर्शन
ये एक वर्कपीस है, ये एक वर्कपीस है और इतना पोर्शन हमको काट के हटाना है। दिस पोर्शन वी वांट टू कट एंड वांट टू रिमूव। सो इसका लेंथ अगर L है, इसका विड्थ अगर B है, इसका जितना निकालना है, पूरा का नहीं ले रहा हूं मैं, जितना हमको निकालना है उतना का हम थिकनेस ले रहे हैं, T है, इतना पहले से है। अभी हमको इतना पोर्शन निकालना है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा B विड्थ लेंथ एंड T थिकनेस, इतना वॉल्यूम निकालना है। तो आफ्टर द कटिंग width will be constant, width will be constant, it is the assumption you have taken, width will be constant, so the change will be occurred in the length of chips and the length of cut, so the volume should be constant before and after। जितना वॉल्यूम चिप कट के निकल गया और जितना वॉल्यूम हमको निकालना था वो दोनों बराबर होगा। जितना वॉल्यूम, तो चेंज कहाँ आएगा, स्पाइरल चिप में और लेंथ ऑफ कट में, इतना याद रखना। Now, in general figure which you have been seen in case of metal cutting is this one। ये फिगर आपको हमेशा मिलेगा। So इस फिगर में कौन कौन सा एंगल होता है वो हम पहले बताना। ये फिगर क्या है कि एक्चुअली दिस वन इज योर वर्क पीस, दिस वन इज योर वर्क पीस एंड दिस वन इज द जोन। ये वर्क पीस है, मतलब ये फ्लैट है, ये वर्क पीस। दिस वन इज योर चिप्स फ्लो विल बी हियर and the tool is this one। So this one is your tool, this one is your workpiece, this one is the chip which will be flow here, this one is chip, metal chips कट। ये लाइन यहां से यहां तक मिला दीजिए। इतना, ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज कॉल्ड T1। ये थिकनेस को बोलते हैं अनकट चिप, मतलब इतना थिकनेस काटना है, टूल इज मूविंग, सो इतना थिकनेस काटना है, सो दैट इज कॉल्ड द अनकट चिप। अभी अनकट। नाउ दिस वन इज कट गया, ये थिकनेस को ले रहे हैं हम, थिकनेस को ले रहे हैं, यहाँ पे विड्थ नहीं समझेगा, ये हम 2 डायमेंशनल फिगर, ये थिकनेस है। दिस वन इज कट चिप्स। तो एक अनकट है, ये पार्ट अनकट है, ये कटिंग हुआ पार्ट है जो चिप्स को थिकनेस को बोलेंगे, और ये अनकट चिप थिकनेस है जो कटेगा, चिप बनेगा। अनकट है, अभी ये कट गया है, इसको चिप थिकनेस, कट चिप थिकनेस बोलते हैं। नाउ दिस वन इज टूल वर्कपीस, और this plane where the deformation is going to take place, so this plane is called shear plane। डिफॉर्मेशन देखो, टूल मूव कर रहा है, चिप इसके ऊपर से उड़ रहा है, फ्लो रेक पेस, ये रेक पेस है, ये टूल का रेक पेस है, उसके ऊपर चिप चढ़ रहा है और द डिफॉर्मेशन हो रहा है इस प्लेन के अलोंग हो रहा है। सो दिस प्लेन इज कॉल्ड shear plane, and shear plane जितना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, टूल वर्कपीस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड shear एंगल। क्लियर? ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। पहला चीज, ये मेरा वर्कपीस है, वर्कपीस, और ये टूल है, टूल के ऊपर चिप फ्लो करता है, इतना पोर्शन हमको
टूल का वर्कपीस का काटना है, सो दिस पोर्शन इज द थिकनेस T1 एंड T1 थिकनेस के डायरेक्शन में, ऐसे हम देख रहे हैं, ऐसे हम देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। फिर दिस T1 इज अनकट चिप थिकनेस, अभी ये कटिंग नहीं हुआ है, सो इसको बोलते हैं अनकट चिप थिकनेस। नाउ दिस पोर्शन ऑफ द चिप हैव ऑलरेडी बीन गोन टू कट, so this is called T2 and this is called the thickness of chip, मतलब cut chip thickness. Now one plane where the deformation is going on to cut the chip, to cut the material workpiece, that plane is called the shear plane. जहां shear failure हो रहा है, shear failure के कारण आपका मटेरियल कट रहा है, तो that plane is called shear plane। और ये प्लेन वर्कपीस के एक्सिस पे जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं पाई, और इट इज कॉल्ड द शियर प्लेन एंगल, शियर एंगल। नाउ दूसरा है आपका रेक एंगल। रेक एंगल कौन सा होता है जो आपको अभी देखना है, ये हर जगह ये फिगर बनाना पड़ेगा मेटल कटिंग, तो काट देते हैं। अभी टूल के टिप पे और वर्कपीस का एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। लुक एट, ये टूल टिप है और ये वर्कपीस का एक्सिस है। सो टूल टिप के वर्कपीस के एक्सिस से एक प्लेन और एक लाइन खींच देंगे। एक मिनट, ये टूल टिप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एक्सिस ऑफ द वर्कपीस, और टूल के फेस से मतलब रेक फेस से जितना एंगल इस परपेंडिकुलर लाइन का होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड अल्फा, और इट इज कॉल्ड बैक रेक एंगल। रेक एंगल जनरली इट विल बी called in books is called rake angle, but actually it is a back rake angle. So rake angle, shear angle, chip thickness, cut chip thickness और uncut chip thickness, ये सारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। दिस वन इज अनकट चिप थिकनेस, अनकट जो कटा नहीं है। दिस वन इज द कट चिप थिकनेस और चिप थिकनेस, जो चिप है मतलब वो चिप को बोलते हैं कटा हुआ पार्ट को, तो कटा हुआ पार्ट है तो दैट इज कॉल्ड द चिप थिकनेस और कट चिप थिकनेस। दिस इज द टूल, एंड टूल के टिप से परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस ऑफ द वर्कपीस के खींचेंगे, तो दैट एंगल इज कॉल्ड द रेक एंगल। नाउ the shear deformation zone where the chips is going to failure, the chip flow and the shear failure will occur. So this plane is called shear plane, and the angle between the shear plane and the axis of workpiece is called shear angle. So I hope this terminology you have understand, and this figure is is made here. This one is the uncut chip thickness, this one is the cut chip thickness. This perpendicular line from the tool tip to the tool face to this point, perpendicular point, this is called alpha, and it is called the rake angle. And the shear plane where the deformation of the chip is going to take place, this plane and the axis of the workpiece is called the shear angle. So this all terminology have written here: T1, T2, phi and alpha. This four terminology you always be remembered: alpha, phi, T1, T2. T1 is uncut chip thickness, T2 is chip thickness after cut, phi the shear plane angle और shear angle भी बोलते हैं, अल्फा इज द रेक एंगल और समटाइम इसको बैक रेक एंगल। सो नाउ अब हमको निकालना है इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, चिप थिकनेस रेशियो निकालना है। चिप थिकनेस रेशियो मतलब चिप थिकनेस का रेशियो का कहने का मतलब क्या है? द थिकनेस ऑफ अनकट बाय थिकनेस ऑफ कट, मतलब अनकट बाय कट याद रखना है, T1 बाय T2।
T1 कौन सा पार्ट है? This one is the T1. This one is the thickness T2. So T1 by T2 is called the chip thickness ratio. और ये chip thickness ratio इतना बार पूछा गया है आपके गेट में कि क्या बताएं। और उसके बाद दूसरा नंबर पार्ट ये है कि चिप थिकनेस रेशियो को निकालना इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड फाई, which the derivation is very much important, mechanism is very much important. Let us see the below. So first the chip thickness ratio, ये थोड़ा लाइट हो गया है बट जब आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो ये दिखेगा। So chip thickness ratio is defined as the ratio of uncut chip thickness by the chip thickness. मतलब T1 is uncut chip thickness and T2 is the cut chip thickness, जो कट गया after the cutting. So this chip thickness ratio is, every book have written R. So R, if the terminology, if you see in the case of metal cutting, तो आपको पता होना चाहिए कि that is called the chip thickness ratio. So R is defined as chip thickness ratio and it will be the T1 by T2. और सिंपल याद रखिएगा, T1 T2 याद नहीं रहता है कि T1 कौन सा है, कटा हुआ वाला जो चिप का थिकनेस है, कि जो अनकट पार्ट है, जो अनकट पार्ट है वो उसका पार्ट वो है। तो याद रखना है अनकट बाय कट, अनकट बाय कट हम यहाँ शॉर्ट में लिख दिए अनकट बाय कट थिकनेस। Now let us one mechanism is there, so you have to firstly erase this one. Now look at here AOB. So actually the mechanism is here that we will make one, this one is the figure here, it is very light, so we will make one another figure. इसी का हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। चिप थिकनेस रेशियो को इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड साई, अल्फा एंड फाई we will be have to prove, and many time it will be asked when alpha angle or phi angle is given, T1 T2 is not given, so how you can determine the chip thickness ratio? Here the chip is goes to flow, here the chip is goes to flow, here the tool is moving, so this perpendicular line, this angle is alpha, ये axis of the tool खींच रहा है, this angle is phi. So इस पॉइंट को O मान लीजिए, इस पॉइंट को A मान लीजिए, this point is A, this point is O. यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, ये एक्चुअली ये T1 है, ये T2 है और ये तो रिलीफ एंगल हो गया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींच दीजिए, इसको N बोल दीजिए, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ खींच दीजिए, इसको B बोल दीजिए। ठीक है, अभी ट्रायंगल AOB में चलेंगे, तो AOB में दिस एंगल इज फाई, दिस AB is the T1 means the thickness of the uncut chip, and from here we can determine the sin alpha, हमको T1 by T2 लाना है, वो हम देखेंगे अल्फा और फाई के टर्म में, इसीलिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं मैकेनिज्म। सो ट्रायंगल BO में जाएंगे, ये एंगल फाई है, यहाँ से ये T1 है, यहाँ से हम साइन अल्फा ले लेंगे, साइन पाई ले लेंगे, साइन पाई शियर एंगल है, तो साइन पाई जो लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू AB द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज AO। So AB by AO, AB by AO, and AB is equal to the length of AB is equal to
what? T1. T1. T1 means uncut T1. chip thickness. So T1 by sin phi लिख सकते हैं हम, AO is equal to, it will be correct. Now AB by AO is equal to T1 by AO sin phi. तो sin AO हमारा निकल जाएगा T1 by sin phi. Now one another triangle we want to take. That triangle will be actually यहाँ पे ये जो अल्फा एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द टूल फेस, और यहाँ से हम ये वाला हम मिटाना चाहते हैं। ये देखो, अभी क्या है कि ये ट्रायंगल बना था पहले, ये एक्सिस के यहाँ पे इसको A रखे थे, इसको B रखे थे, और ये वाला जो एंगल बना इसको डॉटेड में बनाते हैं। ये जो बना वो अल्फा है, ट्रैक एंगल। यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस टूल के फेस पे डाल देते हैं, और ये O है और ये N है। ये जब परपेंडिकुलर डालेंगे, ये देखो यहाँ से एक्चुअली में दिस केस इज लाइक दैट, दिस थिकनेस इज T1, T2, दिस थिकनेस इज T2, कट चिप थिकनेस। सो यहाँ से अगर हम टूल के फेस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और दिस वन इज द आल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सो दिस लेंथ विल बी द कट चिप थिकनेस, कटा हुआ पार्ट का चिप थिकनेस है। अभी हम ये ट्रायंगल उठा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल AON, जब AON जब उठा लेंगे, AON जब हम उठा लेंगे, तो यहाँ से हम अगेन AO का वैल्यू निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो पाइथागोरस फॉर्मूला तो लगेगा ही, और इससे हम ट्रायंगल AON जब उठा लेंगे तो हम यहाँ पे ये एंगल हम डिटरमाइन करेंगे। ये एंगल फाई माइनस अल्फा होगा। कैसे होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका, ये पाई है, तो ये एकांतर अवधा कोण दोनों बराबर होते हैं, तो डेट इज टोटल एंगल पाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये 90, ये अल्फा है, ये 90 है, तो 90 माइनस अल्फा होगा, और ये एंगल निकालेंगे तो टोटल पाई माइनस अल्फा होगा। तो ये AON में ट्रायंगल AON, एक मिनट रुक जाओ, हमको अटेंडेंस ले लेना, थोड़ा वेट कर लेना, मीटिंग के बाद कट जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं हो पाएगा आज। चिप थिकनेस रेशियो आज नहीं हो पाएगा, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। प्रिंट स्क्रीन। तो इसमें चिप थिकनेस रेशियो है, वेलोसिटी है, फिर मर्चेंट डायग्राम है, और फिर टूल जो है, फिर डिफरेंट टाइप का इसमें न्यूमेरिकल, मेटल कटिंग रेट, मेटल रिमूवल रेट, ये सब पढ़ना है। तो पढ़ने के बाद टर्निंग का 2 ऑपरेशन, ड्रिलिंग का 2-3 ऑपरेशन करके न्यूमेरिकल बनाएंगे, और मेटल कटिंग खत्म हो जाएगा।